Good morning, students. Welcome to the another session of Information and Technology. Today, we will start chapter number 10, Formatting in Word Processor. In this chapter, we have a few more steps, few more methods to make changes in a document, for a formatting in a document, for making a document more and more customized in OpenOffice Writer. Now, the chapter is having number of steps, number of things to discuss. So, we will talk about this topic in 2 or 3 sessions. I will try to cover all the topic in 2 or 3 sessions. Today, let's see how many things we can cover. So, if you open the book and take out page number 147, you will find out the very first thing that is there, that is character formatting. That is something that we all are familiar with, the formatting of font style, font size, and these things. So let's start. Purposely, in this document, as you can see, I've already uh, typed, or I have already used some other text from other document. जानबूझ के मैंने यहाँ पर कुछ लेकर रखा है जिसमें आपको सारी चीजें समझा सकूं, मुझे टाइप करना ना पड़े. Now, in character formatting, after you copy the text or after you write the text, you need to select the entire text. जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए, अगर मुझे ये पूरे डॉक्यूमेंट पे चाहिए, you need to select the entire document, then go to format option, then go to character option. This window will come. हालांकि ये जो प्रॉपर्टी विंडो है साइड पे, आप राइट साइड पे देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो helpful for changing the font style and everything, but I will go with the steps given in the book. ये जो है राइट साइड में प्रॉपर्टी वाला विंडो, ये आपका आ भी सकता है, किसी किसी स्क्रीन पे नहीं भी आ सकता है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है. ठीक है. अब फॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. बाय टाइम्स न्यू रोमन पे है, आप टाइप फेस से रेगुलर इटैलिक बोल्ड या बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं. यहाँ पर आप फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट पे चाहिए चेंजेस सिर्फ, तो वो भी आप कर सकते हैं. यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप. तो बस आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है. इस टाइप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हम बात कर रहे हैं 3 चीज़ों की. उसके फॉन्ट स्टाइल की चेंज करने की, फॉन्ट के टाइप फेस को चेंज करने की, और फॉन्ट के साइज को चेंज करने की. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देन वी हैव टू चेंज द फॉन्ट कलर. नाउ let me select the text again, go to format, then go to character formatting only. अब इसी में जो देखिए नेक्स्ट टैब है ऊपर में, फॉन्ट के ठीक बगल में देखिए फॉन्ट इफेक्ट. दिस इज द ऑप्शन which is allowing us to change the font color. Now in this option we have other things also except font color. Just go downward, you need to select any particular color. Let me select magenta, click in OK. The text color will be changed. Then if you have to make something other changes after font color, we have the options to change, underline the text. Then again format, character. Now here underline, single line, double line, bold, dotted, bold, dash. तो इतने तरह के डॉट आपको अंडरलाइन के ऑप्शन है. डॉटेड में आपको डॉट के फॉर्म में अंडरलाइन फॉर्म क्रिएट होगा. ठीक है. लाइक यू कैन सी ओवर हियर. And if you go with the other options, you can go to that also. Instead of the single line or long dash, you can just choose as per your convenient. Let me make it double line. So this is how to change the underline. Then we have superscript
सबस्क्रिप्ट एंड रोटेशन स्केलिंग। तो इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, गो टू फॉर्मेट, गो टू कैरेक्टर। फॉन्ट इफेक्ट में देखिए स्ट्राइक थ्रू वगैरह का भी एक ऑप्शन है, इससे आप टेक्स्ट के बीच में एक कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे इस तरीके से वो प्रीव्यू दिख रहा है आपको यहाँ पर इस जगह पर, दिस इज हाउ इट विल अपीयर। ठीक है, इस तरह से स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। ऑप्शंस एमएस वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आपको, एमएस वर्ड से अगर आप फेमिलियर हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें यूज टू होने में समय लगता है, बट सिंस इट इज गिवन इन द बुक वी विल गो विद दिस ओनली। ओके, नाउ सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए हमें कुछ इस तरह से टाइप करना होगा। मैं आपको बता दूं सुपरस्क्रिप्ट है क्या। सुपरस्क्रिप्ट नॉर्मली refers to a text formatting style in which the text is above the baseline। जैसे कि कोई फॉर्मूला है मैथ्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के ऊपर में बी स्क्वायर है, यानी 2 जो है ऊपर के पोजीशन पे आता है, बेस लाइन से ऊपर चला जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में है, बट इफ यू हैव टू मेक इट इन अ सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन यू नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया, पूरा सिलेक्ट करना नहीं है आपको, 2 को सिलेक्ट करना है। 2 को सिलेक्ट कर लिया, गो टू फॉर्मेट, गो टू कैरेक्टर, फॉन्ट इफेक्ट में ही आपको दिखेगा यहाँ पर, सॉरी पोजीशन, नेक्स्ट टैब पोजीशन पे आइए, सुपरस्क्रिप्ट एंड मेक इट ओके। यू कैन सी इट हैज बीन चेंज टू द पावर पोजीशन। फिर से मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया, कैरेक्टर, सुपरस्क्रिप्ट, ओके। आपको फॉर्मूला लिखना है, पहले लिख लीजिए। ये नॉर्मल देखिए अभी जो टाइप कर रहे हैं सब ये सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म पे टाइप हो रहा है, इसको नॉर्मल करना है आपको। आप फिर से फॉर्मेट में जाइए, कैरेक्टर में जाइए, इसको नॉर्मल कीजिए, देन ये स्टार्ट टाइप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, sorry it's not a square plus b square, it's a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square plus 2ab। so this is how we will make the text into a superscript position। I'm so familiar with the shortcuts in MS Word, but over here in Writer, honestly speaking, shortcuts I have to find out। Generally MS Word में आपका shortcuts तुरंत दिख जाता है, जैसे आप पॉइंटर रखो तो आपको दिख जाता है। Let me just make it yes, ये आपका राइटर में है। लेकिन अगर आप राइटर नहीं MS वर्ड में काम कर रहे हो तो उस केस में आप कैसे काम करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप नॉर्मली टेक्स्ट को टाइप कीजिए, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, शॉर्टकट इज कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू मेक एनी टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हालांकि इसका ऑप्शन यहाँ पर भी आपको मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में, लेकिन आप इस तरह से शॉर्टकट से भी काम कर सकते हैं। और अगर सबस्क्रिप्ट केस हो, ठीक है, सबस्क्रिप्ट के केस में आप जैसे कि H2SO4 टाइप करना हो, यानी 4 आपका टेक्स्ट के नीचे जाएगा, बिलो द बेस लाइन जाएगा, तो उसमें कंट्रोल प्लस इक्वल टू, बस कंट्रोल प्रेस करके रखिए
और इक्वल टू साथ में प्रेस कर दीजिए। ये MS वर्ड की बात होगी, लेकिन जब आप राइटर में काम करेंगे तो उसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा H2SO4 4 को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेटिंग में जाइए, कैरेक्टर में जाइए, पोजीशन में जाइए, सुपर सबस्क्रिप्ट में जाइए, ओके में जाइए। तो आई होप आपको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है रोटेशन एंड स्केलिंग। तो किसी टेक्स्ट को रोटेट करना हो 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, उस केस में कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ कुछ भी, लाइक लेट मी मेक SCS रांची। इसको रोटेट करने का देखते हैं ऑप्शंस किस तरीके से दिख रहा है। अच्छा, ये अभी टेक्स्ट किस फॉर्मेट में है, लेट मी मेक इट चेक इट वंस। हाँ, नॉर्मल में इसको कर लेता हूँ। हाँ, SCS रांची। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यू गो टू फॉर्मेट, then again character, then 90 degree. I think it will go upward. Yes, to 70 degree. नॉर्मली अगर आप टेबल वगैरह क्रिएट कर रहे हो उस केस में ये ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा। ये रिवर्स कर गया, मैंने अंडू किया है, अंडू करके नॉर्मल किया। अब मैं 270 का यूज़ करके देख रहा हूँ। ओके, this is the thing that will appear when you use rotation. Now spacing, it enables the fonts to expand or contract widthwise. Like मैं कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। प्लीज don't get or don't quote me on this particular, I just randomly quoted this text character. अब आप इसमें आ जाइए, स्केलिंग में आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसको स्केलिंग का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो आप नीचे चेंज समझ में आ रहा होगा, टेक्स्ट के बीच में गैप बढ़ रहा है। ठीक है, ये स्केलिंग का पर्पस है। मतलब आप स्पेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ वो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट खुद ब खुद एक्सपैंड कर रहा है। मैंने रिड्यूस किया तो घट रहा है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। स्पेसिंग देखिए एक्सपेंडेड कर सकते हैं, आप कितना पॉइंट एक्सपेंड करना चाहते हैं। देखिए इस तरीके से वो वर्ड्स के बीच में एक्सपैंड होगा। कंडेंस्ड तो वर्ड्स एक दूसरे के साथ सट जाएंगे। तो आई होप आपको प्रीव्यू नीचे दिख रहा होगा जो नीचे मैं काम कर रहा हूँ। मैं इसको करके भी देखता हूँ, पेयर करने को हटाता हूँ। बस इस तरह से वर्ड्स एक्सपैंड करेंगे। वर्ड्स के कैरेक्टर देखिए, बाकी वर्ड्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फॉर्मेट में जब हम जाएंगे और कैरेक्टर में जाएंगे और इसको हम नॉर्मल करते हैं डिफ़ॉल्ट, और पेयर करने को जब यूज़ करना चाहते हैं तब उस केस में क्या होता है देखिए। पेयर करने के केस में इसको आप जब नेक्स्ट टॉपिक है पेयर करने, उसमें देखिए पेयर करने क्या होता है, कैरेक्टर के बीच में स्पेस को कम या ज़्यादा करता है। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, यू कैन जस्ट चेक। आप स्पेसिंग की बात कर रहे हैं तो वर्ड्स के बीच में गैप को बढ़ा रहा है, वर्ड्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन जब आप पेयर करने की बात कर रहे हैं तो जैसे श्री में SHRI है, उनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है, उसको भी कम करना चाहते हैं तो पेयर एंड करनिंग से वो वैल्यू भी कम कर सकते हैं। तो स्पेसिंग इज बेसिकली डीलिंग विद द स्पेस between words to make it expand or make it contract, or pair kerning is basically the space between the character. Then we have format paintbrush. अब देखिए फॉर्मेट पेंट ब्रश इज बेसिकली इसका टूल है क्या, इसका यूज क्या है कि मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, काफी मेहनत से आपने उसका फॉर्मेटिंग किया है, और एक डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं और आप चाहते हैं कि जो पुराना डॉक्यूमेंट है सेम टू सेम वो स्टाइल में से दूसरे डॉक्यूमेंट में रहे, मुझे दोबारा उतनी मेहनत ना करना पड़े फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो उस केस में हम लोग फॉर्मेट पेंट ब्रश का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल
कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ कहीं से, और राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। और इसमें टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर दिया। ये इसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल है। आप देख रहे हैं ये इसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल है, ये बिल्कुल अलग है, इसका मेरे इस डॉक्यूमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैं इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता हूँ यूजिंग विच ऑप्शन, फॉर्मेट पेंट ब्रश। ये आपको स्टैंडर्ड टूल बार में ही मिलेगा, फॉर्मेट पेंट ब्रश। लेट मी फाइंड आउट। यस, दिस इज द ऑप्शन ऑन द टॉप, फॉर्मेट पेंट ब्रश। तो पहले सिलेक्ट ऑल करूंगा मैं ऊपर के टेक्स्ट को ही लेता हूँ जो मैंने जिसमें चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पर जाऊँगा मैं फॉर्मेट पेंट ब्रश। जैसे आप फॉर्मेट पेंट ब्रश क्लिक करोगे तो देखिए आपका पॉइंटर का शेप एक नॉर्मली एक पेंट ब्रश के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो नॉर्मली आप MS पेंट वगैरह में देखते होंगे। तो मैं उसको मैंने लिया है, सॉरी, ओके, यस। ये दूसरे डॉक्यूमेंट पे नहीं, उसी डॉक्यूमेंट के, सॉरी टू फॉर द करेक्शंस। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि फॉर्मेट पेंट ब्रश का काम क्या है कि आप एक डॉक्यूमेंट पे आपने कोई चेंजेस किया है एक पोर्शन पे, आपको वही फॉर्मेटिंग, वही स्टाइल किसी दूसरे पोर्शन पे चाहिए, तो आप दोबारा उतना मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सेम टू सेम फॉर्मेटिंग मेरा दूसरे पोर्शन पे भी चला जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ऊपर का 2 पैराग्राफ, इसमें इसका फॉर्मेटिंग अलग है, और नीचे मैंने कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ें की हैं आपके सामने अभी। तो मैं ऊपर का स्टाइल को इन नीचे के टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? मैंने इसको कॉपी किया, फॉर्मेटिंग पेंट ब्रश में क्लिक किया जैसे, तो ये पॉइंटर चेंज हो गया। और आप जिस टेक्स्ट में करना चाहता है उसको उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार, सॉरी, आप सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंट ब्रश पे क्लिक कीजिए, और जहाँ आपको अप्लाई करना है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गया। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेट पेंट ब्रश वर्क्स। So once again let me explain it. Format paintbrush is basically used to apply the formatting style of one portion of a document to the another portion in the same document. एक फॉर्मेटिंग स्टाइल को कॉपी करके दूसरे जगह पर अप्लाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देन वी हैव चेंजिंग केस। चेंजिंग केस के फॉर्म में हम लोग करते क्या है, वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड्स ऑप्शन टू इंटरचेंज द केस ऑफ द अल्फाबेट्स। लाइक मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे सूर्यनाथ सेंटेनरी स्कूल है, इसको आपको केस चेंज करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? मैं इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाएंगे, चेंज केस में जाएंगे, लोअर केस करेंगे तो सारा का सारा लेटर्स आपका स्मॉल लेटर पे आ जाएगा। फॉर्मेट में जाएंगे, चेंज केस में जाएंगे, अपर केस करेंगे तो सारा का सारा लेटर कैपिटल लेटर में आ जाएगा। चेंज केस में जाएंगे, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, तो वो फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी लेटर्स को स्मॉल करेगा, ठीक है। चेंज केस में, टॉगल केस में जाएंगे तो फर्स्ट लेटर को स्मॉल करेगा, बाकी सबको कैपिटल करेगा। नॉर्मली ये फॉर्मेटिंग हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस केस में जाएंगे तो वो फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी हर लेटर को स्मॉल कर देगा अपने हिसाब से, वो जो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि चेंज केस का यूज क्या है, ठीक है। उसके बाद है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जिसमें हम लोग 4 अलाइनमेंट्स की बात करते हैं, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इन चीज़ों का बहुत दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी जूनियर क्लासेस से देख रहे हैं, और अलग अलग जगह पर आपने यूज़ भी किया है। जैसे ये अभी किस फॉर्मेटिंग में है, ये जस्टिफाई फॉर्मेटिंग में है। कैसे पता चला मुझे जस्टिफाई फॉर्मेटिंग में है? देखिए ऊपर पे ये क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब इसी के बगल में है आपका राइट फॉर्मेटिंग, अलाइन राइट। इससे क्या होगा, टेक्स्ट आपके राइट साइड तरफ से पैरेलल रहेगा, लेफ्ट तरफ उसका पैरेलल नहीं दिखेगा, उसका वो पैरेललिज्म दिखेगा नहीं आपको, सिमिलर पॉइंट पे दिखेगा नहीं स्टार्टिंग। सेंटर करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, वो सेंट्रलाइज फोकस रहेगा टेक्स्ट।
लेफ्ट करेंगे तो सारे टेक्स्ट लेफ्ट तरफ पैरेलल रहेंगे, राइट तरफ इम्पैरेलल रहेंगे। तो नॉर्मली इसलिए हम लोग जस्टिफाई का यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करता है, टेक्स्ट को दोनों तरीके से पैरेलल करता है और ज़रूरत के हिसाब से वो टेक्स्ट को स्टार्ट और फिनिश करता है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अलाइनमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें ही आज के लिए रहने देते हैं। बाकी क्लासेस में हम लोग और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। हम लोगों ने देखा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से कैसे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट को हम लोग सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में डाल सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट को हम लोग रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट को हम लोग स्केलिंग, स्पेसिंग और पेयर कर्निंग के फॉर्मेट में डाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फॉर्मेट पेंट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा लेटर्स के केस को कैसे चेंज कर सकते हैं, कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और टॉगल केस, या रेगुलर केस यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो उस तरीके से हम लोग अलग अलग केस में कैसे अल्फ़ाबेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो देखा टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन, जो 4 ऑप्शंस नॉर्मली हमारे पास रहते हैं, ठीक है। इसके शॉर्टकट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे पॉइंटर पे ले जा रहे हैं तो नॉर्मली लेफ्ट के लिए कंट्रोल+L, सेंटर के लिए कंट्रोल+E, सी नहीं होता है क्योंकि सी किसके लिए यूज होता है, कॉपी के लिए, तो कंट्रोल+E। लेफ्ट के लिए हो गया L, राइट के लिए हो गया कंट्रोल+R और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+J। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडेंटेशन की, लाइन स्पेसिंग की और भी जो बाकी टॉपिक्स है धीरे धीरे देखेंगे, जितना हो पाएगा। अगर लगा तो एक क्लास में ख़त्म करेंगे, नहीं तो 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन। डू वॉच, ट्राई टू वर्क ऑन इट ऑन योर ओन सिस्टम और कंप्यूटर इफ़ यू हैव। आप अगर वर्ड में फेमिलियर हो तो वर्ड में भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कीजिए। और जो भी आपका आज का असाइनमेंट है, यू विल गेट इट इन द गूगल क्लासरूम। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।